Assalamualaikum grade 7. Hopefully you will be good. Today date is 22nd August 2020. It's my 22nd lecture and day is Saturday. Today I am going to discuss about letter writing. We have done application writing. We have done 2 applications. Today I am going to start letter writing. It's informal letter. Informal letter वो लेटर होते हैं जो हम किसी भी रिलेटिव को या किसी भी फ्रेंड्स को लिखते हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं. सी write a letter to your uncle thanking him for his gift. So you are going to write a letter to your uncle who has sent you a gift. आपने गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलना है अपने अंकल को. सी first of all you will write examination hall. So see the punctuation. E is capital, H is capital, and then you put comma. City, C is capital. After city you put 2 dot. It's called colon. यानी 2 डॉट्स आप लगाएंगे, इसको कॉलन कहते हैं. A डॉट B डॉट C एंड देन फुल स्टॉप. A B and C it will be capital. Then 22nd August comma 2020. आफ्टर अगस्त यू विल पुट कोमा. 22nd के बाद ना फुल स्टॉप लगेगा ना ही कोमा लगेगा, और आपने इसी तरह से डेट लिखनी है जिस तरह मैंने लिखी है. कि अगर आप 22/8/2020 लिखेंगे ये इनकरेक्ट होगी. आपने फुल मंथ का नाम लिखना है. 22nd August 2020. And these are the punctuation marks. You have to remember all of the punctuation marks, where you put comma, where you will put full stop. Because I have to give you marks about these punctuation marks. If you put wrong punctuation marks, I shall deduct your marks. So you have to learn it. Next you have to write my dear uncle. After uncle you put comma. The word you are writing, such as if you are writing uncle, U will be capital, dear D will be capital. If you are writing the name of your uncle, it will be capital. If you are writing about any relative name, it will be capital. यानी यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे, फ्रेंड लिखते हैं, फादर मदर, सब जितना भी नाम, कोई भी नाम होगा उसका फर्स्ट वर्ड आपने कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल नहीं होगा. डियर अंकल कोमा. आफ्टर writing in the first paragraph is called greeting. You have to greet your uncle and greet uncle's family, and you have to introduce the topic on which you are going to write a letter. यानी जिस भी टॉपिक पे आपने लेटर लिखना है उसको आपने बताना है फर्स्ट पैराग्राफ में, और आपने ग्रीटिंग लिखनी है, यानी सलाम कहना है या उनकी खैरियत पूछनी है. सी आई होप डैट ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन एंड इन द बेस्ट ऑफ़ योर हेल्थ. यानी सबसे पहले आपने उनकी खैरियत पूछनी है, और इसको ग्रीटिंग बोलते हैं. सब फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ग्रीटिंग के बारे में लिखना है. इट वॉज़ अ ग्रेट प्लेयर टू रिसीव योर काइंड गिफ्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल वॉच. ये बहुत बड़ा ही खुशी की बात है कि मैंने आपका घड़ी का जो खूबसूरत तोहफ़ा है उसको हासिल कर लिया है या उसको रिसीव कर लिया है. सो इन फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू ग्रीट एंड देन you have to write about the topic on which you are going to write. See the next paragraph. In next paragraph you have to write the detail of your letter. No doubt the watch will have sent is very precious and excellent. It is a clear token of your love for me and your appreciation of my success in the 6th class examination. So you have passed in 6th class examination, and this is a gift for your appreciation from your अंकल. यानी आपके अंकल ने जो है आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपकी हौसला अफजाई करने के लिए आपको एक तोहफ़ा भेजा है, गिफ्ट भेजा है कि आप 6th क्लास में उनके जो इम्तिहान है उसमें कामयाब हो गए हैं. और इट इज़ अ क्लियर टोकन. ये एक बहुत ही क्लियर टोकन है कि वो आपसे लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं. और इट्स अ प्रीशियस एंड एक्सलेंट गिफ्ट फॉर यू. सर्टेनली, यकीनी तौर पर, डियर अंकल, एवरी tickling of this watch will keep me regular and punctual and will remain me of your great affection. So you are appreciating the gift and you are telling tickling of the watch, यानी जो watch की टिक टिक है उससे जो है आप रेगुलर रहेंगे और पंक्चुअल रहेंगे, और इसको आप याद रखेंगे. इट विल रिमाइंड मी योर ग्रेट अफेक्शन. अफेक्शन मीन्स लव या मोहब्बत. ये आपकी मोहब्बत की एक बहुत बड़ी याद रहेगी मेरे लिए. प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली. एंड देन यू विल राइट योर्स अफेक्शनेटली कोमा एक्स डॉट वाई डॉट सी. एक्स वाई जी विल बी कैपिटल एंड एट द एंड you will put full stop. So in informal letter
First of all, you have to write address, city, then city. See, examination hall. Examination hall is called address. You have written the address of your home, so you are sitting in examination hall, so that's why you are writing examination hall as an address. Then you have to write city, in which city you are. Then date, it is called date. यानी आपने एड्रेस लिखना है, सिटी नेम लिखना है, देन डेट लिखनी है. दिस इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन. इट इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन, यानी सलाम. डियर अंकल, सैल्यूटेशन होगा. एंड ऑल ऑफ द थिंग यू हैव रिटन, इट इज़ कॉल्ड बॉडी. इट्स ऑल कॉल्ड बॉडी ऑफ द लेटर. टिल हेयर, पे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली. के मेरी अपनी फैमिली को मेरा सलाम के रिगार्ड्स, यहाँ सलाम को कह रहे हैं कि जितना भी ये है ये इसकी बॉडी है. सबसे पहले एड्रेस आता है, फिर सिटी नेम आएगा, फिर डेट आएगा, फिर सैल्यूटेशन, यानी आपने डियर अंकल, डियर फादर, डियर मदर जो भी आप लिखेंगे वो सैल्यूटेशन होगी. उसके बाद आपने बॉडी लिखनी है, बॉडी ऑफ द लेटर. एंड योर्स अफेक्शनेटली इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री. क्लोजिंग के लास्ट में आपने योर्स अफेक्शनेटली लिखना है और XYZ. इट इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. सो इट इज़ द लेटर फॉर्मेट, यू हैव टू रिमेंबर इट. कि सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, सिटी लिखनी है, डेट लिखनी है, फिर सैल्यूटेशन आएगी, बॉडी ऑफ द लेटर आएगा. इन बॉडी ऑफ द लेटर इन फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू ग्रीन and then introduce the topic on which you are going to write a letter. In next paragraph you have to write the detail of the letter. In last line you have to pay your regards or say salam or give some wish on which you are going to write the letter. And at the last you have to write yours affectionately XYZ. See, examination hall is written on right hand side and yours affectionately is written on left hand side, and salutation is also written on left hand side. When I start the paragraph I give one finger gap. See, मैंने हर एक पैराग्राफ में, जब भी पैराग्राफ एंड हो रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने 1 फिंगर गैप दिया है, और आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है. आई होप यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक इन योर लेटर. यू हैव टू राइट द लेटर, इट इज़ योर टास्क, एंड ट्राई टू लर्न इट. इट्स योर वर्क. अल्लाह हाफिज़.